So students, today we are going to learn standard deviation in continuous series. I hope all of you know continuous series. So in continuous series, first topic that I am going to explain you is direct method, or this is also known as actual mean method. So whenever the name came as actual mean method, what does it mean? So it means that the deviations that is required to calculate should be from mean. एक्चुअल मीन मेथड का मीनिंग यही होता है बेटे कि जब भी हमें डेविएशंस निकालना होता है, यानी डी जो निकालते हैं वो एक्चुअल मीन से निकलेगा। अब आप बोलेंगे कि जी मीन कैसे निकलेगा, और अगर आपको बेटे मीन नहीं आता तो फिर आपने 11th क्लास में पढ़ाई की ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमने पहले से आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है मीन निकालना। तो मीन निकलता था इसमें सिग्मा एफ एम डिवाइड बाय सिग्मा एफ। एफ फंक्शन फ्रीक्वेंसी होती है, एम मिड वैल्यू होता है। अब इसमें जो फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, और दिस इज सिग्मा, सिंबल फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज फॉर्मूला सिग्मा एफ डी होल स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ and under root for all these things. So this is the formula that has to be used to calculate standard deviation. Now in this question, you are required to deviation. So deviation will be from mid value minus x mean. Listen again, deviations can be calculated by mid value minus x mean. So students, you have to know this, the formula to calculate standard deviation in continuous series. Now let's take some example to calculate. I'm taking example for you. Now look at this question, and example is from your assignment, and there class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50, and last 50 to 60. And suppose frequency is given as 12, 18, 27, 20, 17, and 6. Now this is the question the examiner has given to you, and examiner says calculate standard deviation. So I told you the formula for standard deviation. So students, first of all you should write the formula. So when you will write the formula, you will automatically understand what the formula is demanding. So formula for standard deviation in this series is, I just told you that sigma f d square divided by sigma f and square root. So what the first requirement should be? First requirement is to calculate d. So d is calculated by mid value minus x mean. That means what you required? You required x mean. So x mean is sigma fm divided by sigma f. So what the first requirement you need? First requirement is to calculate m. That means mid value. ऐसे हमें पता करना होगा।
कि हमें पहले क्या निकालना है। तो अगर फॉर्मूले आपके पास ऑर्डर वाइज होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या वैल्यूज को फाइंड करना बेटे। सो फर्स्ट मिड वैल्यू आप सबको पता है, इस लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करिए, 2 से डिवाइड करिए, तो इट इज 5, 15, 25, 35, 45 and 55. So this is the mid value. Now after the mid value you required fm, so you required f and m, that means f और m का मल्टीप्लिकेशन। अब आपको f और m का मल्टीप्लिकेशन करना है तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 60। नाउ इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 270, 675, 700, 765 and 330. This is FM. Now again what requirement is now to calculate this thing. तो students here in this formula sigma FM, तो अब आप इसका टोटल कर लें FM का टोटल आएगा 2800, सिग्मा F का टोटल कर लें, दिस इज 100, सो 2800 डिवाइड बाय 100, फाइनल आंसर 28. This is the arithmetic mean. So when you have calculated arithmetic mean, you are required to calculate D. D is X, or you can say mid value माइनस एक्स मीन। तो मिड वैल्यू माइनस एक्स मीन करके बेटे आप निकालिए डेविएशन। डी का मतलब होता है डेविएशंस। तो आपने अगर एम है 5 माइनस अर्थमेटिक मीन जो कि आया 28, इसमें से माइनस करेंगे तो आपका बचेगा -23। लाइकवाइज अब 15 -28 remaining -13, likewise -3, now +7, 17 and 27. I hope you know the proper calculation how I am doing it. Now the according to formula what the basic requirement, you require to calculate D square। आपने D तो निकाल लिया, अब आप D का स्क्वायर करिए, और जब स्क्वायर करते हैं तो वैल्यूज माइनस वाली प्लस हो जाती है। तो 23 का स्क्वायर होगा आपके पास 529, 13 का स्क्वायर 169, 3 का स्क्वायर 9, 47 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289, नहीं ठीक है, और ये हो जाएगा 729। ये हो गया हमारा डी स्क्वायर। अब फॉर्मूले में एफ एंड डी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन, तो लास्ट रिक्वायरमेंट है एफ एंड डी स्क्वायर, तो एफ डी स्क्वायर। अब आप देखो एफ कहां है, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये बेटे एफ है और ये है आपका डी स्क्वायर। जस्ट ए मोमेंट, यस, जो सर्कल्ड वैल्यू आप देख रहे हैं एफ और डी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर मुश्किल होती है, तो आप इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 6348। नाउ 3042, 243, 980, 4913 and 4374. Now after calculating all the details,
what is required? The sum. सम आप सिग्मा एफ डी स्क्वायर का सम करेंगे. इट इज नाउ 19900. Now students, you can put the values in the formula, and look the formula that I am using it. This is the formula. आप फॉर्मूले को देखिए. इस फॉर्मूले में मैं यहां वैल्यू पुट करता हूं. सो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर, दैट इज 19900 डिवाइड बाय 100 और इस पूरे का स्क्वायर रूट. सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 199. अब बेटे 199 का आप रूट निकालेंगे तो इट विल बी 14.10. दिस इज द कैलकुलेशन फॉर योर स्टैंडर्ड डेविएशन. अब इसी में अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को आ जाए तो उसका फॉर्मूला तो आपको पहले से पता है. स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्स मीन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देंगे एक्स मीन से. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या वैल्यू आई बेटे? 14.10. और मीन आपको पहले से पता है 28, जो आप निकाल चुके हो. इसको इसे डिवाइड कर लेंगे तो 0.5. तो ये हमारे पास आंसर है. स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.1 और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.5. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन आपको करके दिखाया मैंने. अपने हाथ से एक एक डिजिट को लिख कर बताया है. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इन continuous series by direct method. So all the students, please note it down, entire solution of this thing. So I think you have noted all these things. So if you have not done, you can say take screenshot of both the pages. First of all, take the screenshot of this one that I have explained to you. Standard deviation in continuous series. First method was direct method or actual mean method. So first of all, take the screenshot of this one, and later on you will have to write all these things in your notebook. Then the second page I explained to you the solution of this thing. So this is the entire concept that you have to learn. Now I am explaining to you the next concept that is called standard deviation by shortcut method. अभी आपने देखा कि कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो गई थी. अब जब बेटे हमारी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, अब हमारे पास जो प्रॉपर तरीका होगा दैट शुड बी यूज शॉर्टकट मेथड. अब शॉर्टकट मेथड से अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सो फॉर्मूला इज सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ माइनस sigma fd divided by sigma f and whole square of all these things, then square root of entire formula. Now the formula looks like a bigger than the previous one, but students, this is easier one. This is also known as assumed mean method. Assumed mean method. Now the previous one was actual mean method and this is assumed mean method. So when it came to as assumed mean method, so that means we have to assume value from the mid value. How? So look, I am solving for you one more example. So taking another same question for you. The question was class interval 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50
and 50-60. And frequency was 12, 18, 27, 20, 17, and 6. Now listen carefully. Again, I am telling you, the formula itself says what is required. This is the question. So what is the requirement for you? You are required to calculate D first of all. And how the D is calculated? So you know, for the calculation of D, D can be calculated by mid value minus A. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले मिड वैल्यू निकालनी होगी. मिड वैल्यू आपको पता है, इन दोनों का सम करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और 2 से डिवाइड करेंगे, तो आप पहले से भी कर चुके हैं. 5, 15, 25, 35, 45 and 55. Now what you are required? You are required to assume one value from mid value as assumed. कोई भी वैल्यू आप a ऐड कर लो. चलिए मैं इसमें 35 को a ऐड कर लेता हूं. दिस इज मिड वैल्यू एज a को मैंने 35 ऐड किया, यानी अज्यूम. अब आपको d निकालना है, तो d कैसे निकलेगा? ये है 5 माइनस आपने 35 ऐड किया a, ये हो गया माइनस का 30. लाइकवाइज 15 minus 35, this is now minus 20. Likewise आपको all values निकालनी है, minus 10, 0, 10 और 20. This is your D. And after calculating D, what is required? The formula says that I need D square and plus FD. आपको देखो यहां पर FD भी चाहिए फॉर्मूले में, F and D, फिर D स्क्वायर चाहिए, FD का स्क्वायर भी चाहिए. तो आप पहले FD कर लें, F and D का मल्टीप्लिकेशन कर लें. अब ध्यान से देख लो, F किधर है और D किधर है बेटे. कई बार बच्चे बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको F और D, यानी ये F है और ये D है, इसको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू इधर आएगी. तो आप पहले 12 को -30 से मल्टीप्लाई करेंगे. 12 minus 30, it is minus 360. Again 18 को 2 से करेंगे, सेम वैल्यू, minus 360, minus 270, 0, 170 and 120. Now we have done FD. Now we require D square. D square. अब आप D की वैल्यू देखो कहां पर है. D को आपने स्क्वायर करना है, तो ये जो -30 है, -30 का स्क्वायर करेंगे, इट इज नाउ +900. लाइकवाइज आपको 20 का स्क्वायर करेंगे, 400, देन 100, 0, 100 and 400. This is D square. Now finally, what you required now? You are required to calculate F and D square multiplication. अब आप देख लो F किधर है और D स्क्वायर किधर है. देखो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये बेटे F है और D स्क्वायर आपने ये अभी निकाला है. तो इन दो सर्कल को देखो, F और D स्क्वायर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है. समझ रहे होंगे क्या बताना चाह रहा हूं मैं? F को और D स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 को अगर आप 900 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 10,800. Likewise 7,200, 2,700,
0, 1700, 2400। अब आप इस सब का सम कर लेंगे। इसका सम करेंगे -700 और इसका सम कर लेंगे सिग्मा एफ 100। अब आप अपने इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, जो ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पर योर स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू, first of all, sigma fd square. So sigma fd square is 24800 divided by sigma f 100 minus fd is -700 divided by 100 और फिर इसका पूरे का स्क्वायर, होल स्क्वायर, देन एंटायर। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपने इसको सोल्व किया, ये 2 जीरो से ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 248। इसी तरह से इसको आप ये 0 कैंसिल करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। देन अगेन अब 249 में से 248 में से 49 माइनस करेंगे तो 199। अब आप देखेंगे पहले वाले क्वेश्चन की वैल्यू आ गई सेम, तो आंसर हो गया हमारे पास 14.1410। ये है हमारे पास क्वेश्चन करने का तरीका। और अगर आप इसमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं तो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, मीन हमारे पास 28 आया था, आप इसको 28 से डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन, तो 14.10 डिवाइड बाय 28, तो सेम 0.50। सो दिस इज द क्वेश्चन बाय शॉर्टकट मेथड। सो स्टूडेंट्स, do note all these things in your own handwriting. I don't believe in screenshot. You have to write it by your own handwriting. So take screenshot if you have not noted yet. Now the next concept is that I will explain to you is step deviation method. So first I explain to you actual mean method. Second, I explain to you assumed mean method. Now the next is standard deviation by step deviation method in continuous series. So this is the topic that we will learn now. So students, as usual, what the change? So formula is same that I explained to you right now. What I explained to you, पहले मैं पुराना वाला बताता हूं जो मैंने अभी क्या सिखाया। आपको बताया सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ एंड होल स्क्वायर ऑफ ऑल। ये मैंने, और फिर इस पूरे का स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला भी आपने सीखा। तो इसमें और नए वाले में अब चेंज क्या है? अब देखो क्या चेंज है बेटे, कोई भी चेंज नहीं है, बस छोटा सा आपको याद रखना है कि यहां हर जगह पर डैश आएगा डी के लिए। तो देखो डी के साथ यहां डैश लगा दो, यहां डी के साथ डैश लगा दो और बाद में मल्टीप्लाई बाय सी कर लो, बन गया फॉर्मूला। ये स्टेप डेविएशन होता है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो बस पिछले वाले फॉर्मूला ही जैसा है, बस बेटे यहां पर डी के साथ में डैश और आ गया, इसका मतलब एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा। तो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, तो देखिएगा, क्लास इंटरवल एज यूजुअल 0 10, 30 40 और 50 60। नाउ मिड वैल्यू हमने पहले से निकाली ली थी सभी के लिए,
एफ हमारे पास गिवन था, अब देखिए आपको क्या क्या इसमें चाहिए। ये तो वेरी इजीली हम अपने हिसाब से निकाल ही सकते थे। थोड़ा सा इजी हो जाता है लाइनें डालने से। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू टू कैलकुलेट डी। तो हमने पिछले क्वेश्चन में 35 को ए लेट किया था, इसमें भी हम ए लेट 35 कर लेते हैं, तो हमारे पास डी वैल्यू आ जाएगी एम माइनस ए। तो वैल्यू आई थी हमारे पास -30, -20, -10, 0, 10 एंड 20। अब हमारे पास स्टेप क्या एक ऐड हो गया बेटे, स्टेप ऐड हुआ है डी डैश का। सो कैलकुलेट डी डैश कैसे निकलता है, डी बाय सी। तो इस डी को किसी भी ऐसी वैल्यू से आप डिवाइड करें जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो सके, तो नेचुरली है हमारा, हम जो सी है वो 10 ले लेते हैं। तो 10 से ये सही वैल्यू डिवाइड हो सकती है, तो -3 हो जाएगा, -2, -1, 0, 1 एंड 2। इजी हो गया, कैलकुलेशन छोटी हो गई हमारी, तो वैल्यूज हमारी अब सिंगल डिजिट में आ गई। सिंगल डिजिट में आ गई, अब आसान काम होगा, एफ और डी डैश का मल्टीप्लीकेशन। तो एफ को डी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज नाउ -36, अगेन -36, -27, 0, 17 and 12. Then अब आपको डी डैश का स्क्वायर करना है बेटे, देख लो कहां पर डी डैश, उसका स्क्वायर करना है। तो ये है 3 माइनस में, स्क्वायर हो जाएगा 9, 4, 1, 0, 1, 4। अब फाइनल एफ डी डैश स्क्वायर। अब एफ का और डी डैश स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन देखो बेटे, एफ ये है और डी डैश स्क्वायर ये है। जो सर्कल्ड वैल्यू हैं उनको आप देखो, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना। यहां पर तो केवल गड़बड़ हो जाती है आपसे कि किसी का किसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गलती हो जाती है, इसलिए आप ध्यान से देख लो कि किसको कहां से करना है मल्टीप्लाई। तो 12 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 12 9 जा 108। इसी तरह से 72, 27, 0, 17 एंड 12, 20, 24। अब इसका आप सम कर लीजिएगा, इसका सम है 248, इसका सम है एफ डी डैश का -70, और ये सम तो हमारे पास पहले से चला आ रहा है 100। अब बेटे आप इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर। सो सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर 248 डिवाइड बाय सिग्मा एफ 100 माइनस सिग्मा एफ डी डैश -70 डिवाइड बाय 100 एंड होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 10। 10 सबको पता है क्या था, जो आपने कॉमन फैक्टर वैल्यू ली थी वो 10 है। अब आप इसको सोल्व कर लें, इसको सोल्व करेंगे 2.48, इसको सोल्व करेंगे 0.49 मल्टीप्लाई बाय 10। ध्यान रखना 10 स्क्वायर रूट से बाहर आइए, कुछ बच्चे इसका रूट से 10 को अंदर ले लेते हैं, 10 रूट से बाहर आए, ध्यान रखना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी।
10 जो है वो रूट से बाहर रखना बेटे, 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10, अगेन 1.410 मल्टीप्लाई बाय 10, 1.99 का रूट निकाल दिया, ये वैल्यू हो गई। नाउ फाइनल आंसर वही सेम हो जाएगा 14.10। सो दैट्स इट फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर आपको इसका सेम वही कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो सेम फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्स मीन, तो वही वैल्यू पुरानी आ जाएगी आपके पास, 14.10 डिवाइड बाय 28 जो हमने मीन पहले निकाल लिया था, इसका भी आंसर 0.5। सो दैट्स इट फॉर स्टेप डेविएशन मेथड इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। नोट द एंटायर सॉल्यूशन इन योर ओन हैंडराइटिंग। तो बेटे आप सबने इसको नोट कर लिया होगा, और मैं फिर से कहूंगा अगर आप बाई चांस स्क्रीनशॉट ले भी रहे हैं तो अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें। अब एक क्वेश्चन मैं आपको एज फॉर प्रैक्टिस दूंगा। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज क्लास इंटरवल 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 और 40-50। फ्रीक्वेंसी मैं आपको दे रहा हूं 2, 5, 7, 4 and 2. Now students, calculate standard deviation by one actual mean method. Two assumed mean method and C step deviation method. यही तीनों मैंने आज आपको बताए हैं। बहुत अच्छे से आपको एक एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। ये तीनों आप मेथड में इसको प्रॉपरली क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और आप इसका प्रॉपर सॉल्यूशन करके मुझे अब आप एज ए होमवर्क सेंड कर दीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेक्शन।